Jai Gaur Sri Radha Ramano Vijayate. Shankar, can you hear me clearly, bache? Pallavi, can you see me clearly? I welcome you all to the Sutra, Stotra and Shastra class of Nimai Pathshala. Today we have collaborated two classes, which is the Sunday batch and the Monday batch. Because of many reasons, I couldn't take the class. The most important reason, I'm sure you all must be knowing, that Maharashtra is having Katha in Radhakund, and the time of the Katha and the time of the class clashed. So, because on the weekends I'm in Dham, so I chose to listen to Harikatha, fill my patra with the nectar of love so that I can extend that love to all of you. So that is why I couldn't take the class yesterday. And I came back to my Karma Bhumi, which is Gurugram. And now I'm all the way available for all of you. So, a lot of things to be discussed in today's class. But before, as we always do, before we start the class, let's first extend our gratitude, our love, our immense dedication, and everything that we have, we aspire to have in the lotus feet of Sri Radharaman Lal. So please fold your hands. You can close your eyes, or you can take the darshan of Radharaman Lal if he's anywhere around, if you have a chitrapat around, or you can just close your eyes and look within yourself. You will see him smiling right at you. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीरामाय वयं नुमः श्रीगौराय वयं नुमः वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Because the Monday session that we generally have is an English batch, but because we have Sunday and Monday collaboration today, so today the class is going to be in English, right? It's going to be half Hindi and half English. So I think most of you who are in the class today understand Hindi, and we have a lot of students who are from the Sunday batch today. So I will try to balance both the languages, and Sanskrit is going to be the main language guiding all of us. But before we start the main class, if anybody has any kind of problem in understanding the language I'm speaking, today I'm open to re-explain you everything in all the languages simultaneously. So please feel free to extend your views that ma, I didn't understand this, ma, please explain in Hindi, or maybe explain in English, or maybe explain in only English, Hindi and Sanskrit. Okay, don't go into some other language, ma, please explain in French. So that's not going to happen. Okay, so firstly, as you all know, the time is coming. The countdown has already begun for the Jagannath Puri camp. We all are thoroughly excited and thrilled to welcome all of you, to serve all of you. They are the students of Nimai Pathshala, the management team. I'm telling you, they are working day and night to make sure that each one of you
feels very comfortable, does not have any problem in the camp. We are doing a lot of things to make sure that the entire experience that you all have during these 3 days should be one of the best experiences you've ever had in your lives. The management team is working day and night. They are having Zoom meetings and sessions every night, distributing the rooms, distributing the duties, distributing the groups. You all will be divided into 50 groups, and each group will be handled by two captains of Nimai Pathshala. So you have any problem, your accommodation, your traveling, your emotional side, your everything will be catered to. Your eating, if you have any other problem, you don't have a blanket, you don't like the room, you don't have the, I'm thoroughly told, and the children of the management team are looking at me and laughing right now. But they have told me, Ma, please, you will not get into this, because I tell them, okay, you have to, if there's something, somebody's, because, managing 700 students altogether is a bit of a task, especially for the students themselves. But they are working very, very hard and saying, Ma, please, you don't get into it, because if you do get into it, then it's going to be very, crazy. Because I am still, somebody's asking me, we want to go for the camp and like, can we come? I'm like, and all my management team is, Ma, no, it's the Kung Fu Panda. No, we cannot, accommodate more people at the last moment. But please, we are thoroughly excited and we are working very hard. My team is working very hard for giving you the best of experience during these 3 days. So be very excited, and we are waiting to welcome you. Secondly, I really hope that whatever we taught you during the Janmashtami tutorials, you have at least managed to make one of it for Thakurji on Janmashtami. If not, no problem. Radha Ashtami is coming, and the same way we are going to make, do, tell you few things that are very dear to Srimati Radha Rani. Am I not clear? I'm getting many messages saying that I'm blurred. Diksha, am I blurred? I'm good. Meera, am I good? Good. Utkarsh, am I good? If I can look good from Georgia, I can look good from anywhere. Okay. So please see your internet connections. I think mine is working very well because I can see my Wi-Fi is giving full connection. So what was I saying? Yes, we'll be having a week celebration for Radha Ashtami as well. So we'll be teaching what is dear to Radha Rani, what we should be doing in terms of garland, what we should be, how we should be doing the Abhishekam, what all can we do to please Srimati Radha Rani on Radha Ashtami. So please, you must at least, if not everything, you must make at least one of it to prove your love, to prove your dedication to please Srimati Radharani. And I've already told you about, the Jagannath camp. So please be very excited. If you have any questions, you are free to ask me. And without any further delay, we are going to enter in the class. But there is a slight change. Generally, in the Sunday class, we are on chapter number 11, right? But because the two classes have merged today, so today we are going to go according to the present. What we teach in the Monday class, we are going to according to that. So people who are in the Sunday class will also get to revise something very, very crucial that we discussed in the last class of Monday, in which Bhagwan has clearly told the right way to do your bhajan, how you should be sitting, how you should be chanting, what you should be thinking, what you should be meditating upon while you are doing chanting. And those who all are joining for the first time, Sunday is a Hindi class, Monday is an English class, Tuesday is a Hindi class. But today we have an English class because Sunday and Monday batches have united just for this week. So the shlok is going to appear on your screen. In the last class, I will quickly revise because the students of Sunday should know at least what context we are talking on to. In the last class, Bhagwan have told Arjun very clearly that what kind of asan you should be using when you are doing your mala, you're doing your bhakti, you're doing bhajan. So he said that the asan, the place where you'll be sitting and doing your bhajan, should be pure, not just clean. It should be pure. I mean, you should be sitting in that part of your house which is pure, which is the purest part of your house, your temple, or maybe some part of your room as well, wherein maybe, in what happens generally in the houses, जो घर का मंदिर होता है वो घर के सेंटर में होता है,
तो समटाइम्स जब आप मंदिर में बैठ के भजन करते हो तो आपके आसपास के लोग जो चिल्ला चाटी कर रहे होते हैं, दैट बिकम्स अ ग्रेट हिंड्रेंस इनटू योर भजन। आप भजन करने के लिए मेडिटेट कर रहे हो पर बाहर से बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर उधर से हल्ला हो रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट डू यू नीड टू डू इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? यू कैन यूज योर other place, which can be your room, which can be some other place, that can be your roof somewhere, जहां पर आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं हो, but that place should be a pure place, not something which is dirty, not something which is very public. तो इस प्रकार के स्थान पर आप जाकर ऐसी भूमि पर बैठकर आप जो पवित्र हो, और उसके ऊपर जो आपका आसन हो वो किस प्रकार का आसन होना चाहिए? या तो वो कुशा का आसन हो, या फिर वो मृग छाल मतलब कि डियर स्किन का आसन हो, जो वो स्किन जो डियर स्वयं छोड़ता है आफ्टर लीविंग हिज बॉडी, विच इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड दीज डेज, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्योर। और तीसरा, या तो वो कोई सिल्क का आसन हो या ऊन का, वुलन। इन 4 प्रकार के आसनों पर ही बैठकर आप अपना भजन कर सकते हो। और ऐसा आसन हो जो बिल्कुल भी आपके आसन, जिस पोजीशन में आप बैठे हो उसको बैठने पर आप अपने भजन में ध्यान लगा पाओ, आसन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्टूल पर बैठ के बैठ जाते हैं जो अपने आप में हिलता है, तो आप भजन करते हो कभी ऐसे हिल रहा है कभी ऐसे हिल रहा है, ओहो ऐसे कई लोग करते हैं। आई हैव सीन इन सम पीपल्स हाउस कि क्या करते हैं, वो भजन करते करते पीछे होता तो मोड़ा है, मूड़ा सा होता है ना, जो एक काइंड ऑफ स्टूल होता है, उस पर बैठ जाते हैं आसन बिछा के, घुटना दुखता है, नहीं बैठ सकते नीचे, वो बैठ उसके ऊपर जाते हैं और पीछे उसके सपोर्ट नहीं है। तो क्या करते हैं, भजन करते 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 थोड़ी निद्रा आ जाती तो एकदम घुर, ओ मर गए मर गए मर गए, ओ गए 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 गए। इस प्रकार के अनस्टेबल आसन पर बैठकर भजन नहीं करना। आप पीठ को टिकाकर, अगर आपकी पीठ आसन के साथ अकेले स्वयं पे स्थिर रहने में सहायक नहीं है, तो दीवार के साथ पीठ को सीधा लगाकर आगे आप जो भी साधन है भूमि पर बैठ सको, बेस्ट। भूमि पर बैठ के नहीं हो रहा, स्टूल लगाना है तो पीछे सपोर्ट के साथ उसके ऊपर आसन बिठाकर आपने भजन करना है। इस प्रकार भगवान ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि व्यक्ति को किस प्रकार कैसे आसन पर बैठकर अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके, आपको कोई भी काम है पहले काम करके फ्री हो जाओ। भजन करने आधा घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाओ भैया, पर पहले अपने घर वालों के काम, घर वालों की चीजें, घर वालों की बातें सब निपटा कर उसके बाद ही आप अपने भजन में बैठो। इसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त के भजन को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए आज हम अगली क्लास के जो हमारे श्लोक है उनको जल्दी से, आज 5 जो गीता जी के श्लोक है उनको पढ़कर उनके अर्थ को समझ के हम विष्णु सहस्त्र नाम पे अग्रसर होंगे। मेरे संग संग पढ़ने का प्रयास करिएगा। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले को, देखिए अगर आपको भजन करना है तो आपको अपनी हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर केवल भजन करोगे, परिवार को ध्यान नहीं दोगे तो भी भजन नहीं कर पाओगे, अगर ज्यादा सोओगे तो भी भजन नहीं कर पाओगे, ज्यादा कम सोओगे तो भी भजन नहीं कर पाओगे, ज्यादा खाओगे तो आलस्य होगा, कम खाओगे तो चेतना भूख में बढ़ेगी। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर भजन करना है तो अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करके हमको भजन करना है। अति सर्वत्र वर्जयते। अगर जीवन में किसी भी चीज की अति करोगे, चाहे वो भजन ही क्यों ना हो, उसकी अति भी करोगे तो उससे भी आपकी जो रुचि है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप भगवान यहाँ बिल्कुल देखिए कितना स्पष्ट भगवान ने बोला है, अर्जुन जो भजन रूपी जो योग है ये ना तो अधिक खाने वाले का, जो ज्यादा खाते हैं, और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का। बताओ, तुमने भोजन ही त्याग कर दिया, तुमने खाना ही नहीं खाया, तो क्या करोगे? भजन करते करते बेहोशी हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। ज्यादा खा लिया तो भजन करते करते, बहुत लोगों में होता है कि नहीं होता?
बैठे तो लग रहा है कि कितनी मतलब बच्चे सोचे हमारी मैया से ऊपर कोई भजनानंदी ना आए, मैया पट बंद करके अंदर माला करती करती, बाहर तो सोने ना आए दे रहे, हमने 1 घंटा की नींद हमने मंदिर के अंदर ही पूरी करके आ गई हैं। तो ना तो ज्यादा खाने वाले को और ना ही कम खाने वाले से भजन होने वाला है भैया। और भगवान क्या कह रहे हैं, ना तो अधिक न चाहती स्वप्नशीलस्य, और ना ही ज्यादा सोने वाले का। भैया तुम्हारे जीवन में तुम जो व्यक्ति ज्यादा सोता है ना, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद से ज्यादा निद्रा लेता है, उसका दिमाग बुझ हो जाता है, उसके थिंकिंग सेल्स ही डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भजन ना तो ज्यादा सोने वाले का और ना ही ना बिल्कुल सोने वाले का। जो व्यक्ति सोता ही नहीं है उसकी भी जो चिंतन करने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और जो व्यक्ति ज्यादा सोता है उसकी जो चिंतन करने की शक्ति है वो बुझ हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको सच में भजन करना है तो पर्याप्त सोइए, जितनी आवश्यकता है उतना सोइए, जितना सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं। एक एक हेल्दी मनुष्य शरीर को रात्रि में कम से कम 7 से 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए। आपको अपने पूरी दिनचर्या में अपने ब्रेकफास्ट को सबसे हैवी करके लंच को उससे कम, रात्रि में अल्प भोजन, जितनी जल्दी आप अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहते हो, पूरी एकाग्रता से भजन करना चाहते हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डिनर को नियंत्रित करो। ईट बिफोर सनसेट। हमारे जो पूर्वज थे सनातन के मर्यादा के भीतर, आपको ऐसा क्यों कहा गया है कि लोग कहते थे कि अरे संध्या में जल्दी खाओ जल्दी खाओ, क्योंकि दिनचर्या सवेरे 4 बजे से प्रारंभ होती थी भैया। यहाँ तो रात्रि के डिनर ही रात के 12-12 बजे तो खाना चल रहा है, फिर सोते सोते वही 1:30-2 बज रहे हैं। और फिर अगर कहीं हमारी किसी बात पे आपको दिल आपको लग गया और उस फील में आके 4 बजे का अलार्म लगा के 2 घंटे में उठ ही गए, तो क्या लगता है कितने दिन चल पाओगे भैया, कितने दिन झिलोगे झिलेगो ये वाला भजन तुम्हारे से, झिलेगो? तो अगर भजन करना है अपने सोने से लेके, खाने से लेके, सोचने से लेके, बोलने से लेके, क्या खाना है क्या नहीं खाना सबका ध्यान रखो। मेरे को एक बात महाराज जी ने शुरू में कही थी, हमको इतनी प्यारी लगती है और हमने उसे अपने जीवन में बड़ी अच्छी गांठ बांध ली। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने दिनचर्या के भजन का जो समय होता है उस 2 घंटे के हिसाब से अपने 22 घंटे मैनेज करो। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा। रात को जल्दी सोने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे काम पहले निपटाने पड़ेंगे, अपना आहार पहले करना पड़ेगा, रात्रि में कम खाना पड़ेगा। कम खाओगे भजन नहीं होगा, तो बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो दोपहरी में अच्छे से खाना पड़ेगा। सुबह इतने समय बाद ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भजन करने के बाद जब आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, उसके बाद अच्छा ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा, वरना शरीर शिथिल हो जाएगा। तो अपने भजन के लिए तुम इतने सतर्क हो जाओ कि दुनिया को तो लगे कि तुम सब कुछ उनके लिए बड़ा ऑन टाइम कर रहे हो, पर सच्ची बताऊं तो तुम अपने भजन के हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित कर रहे हो, कि मेरे वो 2 घंटे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ना मुझे नींद आए, ना मुझे भूख लगे, ना मुझे कोई पुकारे, ना मुझे कोई बुलाए, ना मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन हो, ना मुझे कोई काम हो, ना काम वाली आए, ना ऑफिस जाना हो, ना बच्चे चिल्ला चिट्टी करें। कब ऐसा होगा? एक ऐसा समय में अपनी पूरी दिनचर्या में ढूंढ लो, चाहे वो सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे वो दोपहर के 12 बजे हो, चाहे वो संध्या के 6 बजे हो, उस हिसाब से मैं अपनी दिनचर्या को मैनेज करूं। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर, देखो भगवान ने हमें स्पष्ट बता दिया कि जो व्यक्ति समत्व में नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो चाह कर भी भजन नहीं कर सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, दुखों का नाश करने वाला योग। राधा रमन मेरे हैं, राधा रमन लाल सदा मेरे साथ हैं, राधा रमन लाल मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे जीवन के हर कर्म को करने में मेरे सहायक हैं। मैं जीवन में जो कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं, उसको करने से जो मुझे फल मिलेगा उसके रूप में भी मुझे राधा रमन ही चाहिए। बताओ, इसके इस प्रकार की मनस्थिति के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में दुख हो सकता है?
दुख कोई चीज ऐसी आपको स्पर्श भी कर सकती है जहां पर आपने इस दुनिया की हर वस्तु को राधा रमन जी का प्रसाद मान लिया हो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला ये योग, कौन सा योग? समत्व योग, विश्वास योग, तथा योग यथा योग्य आहार, मतलब जितनी जरूरत है उतना खाना। कई लोग हैं जो खा रहे हैं तो भैया खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो नहीं खा रहे तो भैया बीपी लो, हेमोग्लोबिन लो, आयरन लो, सब कुछ लो, बेड पे पड़े हैं। माँ हम बैठते हैं हमारा पीठ दुखता है, हमारे को हम बैठते हैं हमको चक्कर आता है माँ, एक से ज्यादा माला करते हैं आसन पर बैठ के तो घुटना दुखते हैं। भैया विटामिन खाओ, फल खाओ, खाना खाओ, जूस पियो, नारियल पानी पियो, तभी तो शरीर में ऊर्जा आएगी। प्लीज रिस्पेक्ट दिस साधन। भगवान है साध्य, भगवान है लक्ष्य, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो ये साधन रूपी शरीर दिया है, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसका बड़ा ध्यान रखो। यही आपको राधा रमन जी से मिलाने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, मतलब कि जिसने अपने जीवन में अपने फूड को और अपनी मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर लिया है। भगवान कहते हैं देखो तुम केवल भजन करते रहोगे और परिवार में, संसार में, व्यापार में ध्यान नहीं दोगे तो भी तुमसे भजन नहीं होगा। भैया भजन करना है, भजन करने के लिए माला झोली चाहिए, एक माला चाहिए, आरती करने के लिए धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, थोड़ा सा घी चाहिए, वो भी तो फ्री में आता है क्या? उसके लिए भी तो कुछ माल पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं वो कैसे आएगो? काम तो करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर अपने जीवन को बैलेंस नहीं करोगे, तुम यथा यथा योग्य मतलब जितनी जरूरत है उतना काम नहीं करोगे, संसार में विचरण नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, तुम अगर उतना खाना नहीं खाओगे, उतनी निद्रा नहीं लोगे, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, जो करने योग्य कर्म है उनको नहीं करोगे, हो तो तुम बालक, हो तो तुम अपने ऑफिस के अंदर मैनेजर, पर अब कर्म नहीं करना, राधा रमन राधा रमन राधा रमन करोगे तो ऑफिस से पहली बात तो तुम्हें लात मार के निकाल देंगे, कहेंगे तुम वहीं जाके राधा रमन करो भैया। अब जब ऑफिस से निकाल दिए जाओगे, काम नहीं करोगे तो निर्वाह कैसे होगा? ऐसा करने वाला तथा यथा योग्य सोने और जागने वाला ही सिद्ध होता है। भगवान की दृष्टि में कौन सा व्यक्ति आता है? जो सदा समत्व योग में रहता है, जो बिल्कुल यथा उपयुक्त खाता है, यथा उपयुक्त सोता है, यथा उपयुक्त बोलता है, फालतू की बकवास की बातों में नहीं पड़ता। हाँ जी आज तुमने क्या पहना, ये कहाँ से खरीदा, ये कितने का था, ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ को जाएगा, तू कहाँ से आई है, ये सब बातों में जो नहीं उलझता। तुम अपने कर्म के उपयुक्त जो बात करने वाली है केवल वो करते हो, जो तुम्हारे लिए उपयोगी है उस बात को ही तुम सुनते हो, उसी बात से तुम अफेक्टेड होते हो। जब तुम अपने जीवन में इन सब बातों का नियंत्रण करने लग जाओगे, भगवान कहते हैं तब तुम सिद्ध हो जाओगे। तब भजन करते करते 16 माला, बताओ आजकल क्या है, 16 माला का नियम गुरुदेव ने दे दिया, तो वो तो तलवार खोपड़ी पे लटका दी गुरुदेव ने, ये नहीं करेंगे तो पतन है जाएगा, गुरु आ गया है। और भैया तुम्हें पता है, तुम्हें बताओ तुम्हारा भजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कहाँ से पता चलता है? जब कभी तुम भजन कर रहे हो ना और 16 माला तुम्हारी है गई, तब 16 माला करने के बाद ना तुम्हारा मन करे कि एक माला और कर लो, ये पुष्ट करता है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भजन। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ माला हो रही है कि घई कट रही है? हे धनाधन, हे भगवान माला करते करते कितने रह गए भैया, अब इतनी माला तो होगी, 4 ही हुए अभी तक। हे भगवान, एक खींच रहे हैं माला, एक खींच रहे हैं माला, ये माला नहीं है, ये तो तुम्हारी खोपड़ी पे गुरुदेव ने जो तलवार लटकाई है ना, उसको तुम्हें पता है, ये 16 नहीं करी तो यही तलवार, ये जो धर पे तुम्हारी खोपड़ी लगी है वही तुम्हारी निकल जाएगी उससे, है ना। तो यहाँ पर हमको इस ये हमारे जीवन में वो जजिंग पॉइंट है जिससे पता चलता है क्या भजन कर रहे हैं कि भजन करने का नाटक कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सिद्ध वही है, भजन में रुचि उसकी बनती है जो ना तो मोटा है ना पतला है, वो जैसे भी शरीर में एक्टिव है, उसका नियंत्रण है, उसको जितनी ऊर्जा चाहिए उतना वो खा रहा है, जितनी निद्रा चाहिए उतना वो सो रहा है, जितना अध्ययन करना चाहिए उतना कर रहा है, जितना काम करना चाहिए उतना कर रहा है।
जितना माता पिता के संग समय बिताकर उनकी प्रसन्नता उतना समय बिता रहा है, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहा है, जो जीवन में हर चीज को बैलेंस वे में कर रहा है, भगवान कहते हैं वही सिद्ध है। अगला श्लोक देखो, बड़ा सुंदर ये श्लोक, भगवान ने कैसा समाधान किया है भैया भक्तों के जीवन का। वाह वाह। हम्म। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। मतलब सबसे पहले वश में किया हुआ चित्त कैसे होगा? वो चित्त जो बाहरी रूप से अप्रभावित हो चुका है, वो चित्त जो अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। हम भजन में बैठे हैं, राधा रमन लाल, हम हर जगह से निवृत्त होके अब आपकी सेवा में है। हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हमें ना कुछ खाना है, ना हमें नींद आ रही है, ना हमें कुछ भी करना है, ना हमें कोई बुला रहा है, ना हमें कोई काम है। हम केवल आपकी सेवा में अब पूरी तरीके से समर्पित हैं। इस प्रकार का चित्त भजन में लगता है। बताओ, भजन करने बैठे और टू डू लिस्ट में 6 चीजें हैं, मन लगेगा? मन करेगा जल्दी जल्दी माला खींचे, उसके बाद हम जल्दी से यूनिवर्सिटी दौड़े, जल्दी से हम काम पे दौड़े, जल्दी से हम खाना पका लें, ये सब चीजों में चिंतन दौड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आपका स्वरूप क्या है? आपका क्या स्वरूप है? क्या ये शरीर स्वरूप है? क्या ये नाम स्वरूप है? आपका स्वरूप क्या है? दासोहम अस्मि। हम कौन हैं? हमारा स्वरूप क्या है? हम राधा रमण देव जी के श्री चरणों के दासों के भी दासों के भी दास हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, जानवी ने लिखा, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है कि कहाँ हम कौन है? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णावृताब्दे गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। ये हमारा स्वरूप है। तो हम जब इस दुनिया के हर संबंध से निवृत्त होकर जब हम भजन में बैठते हैं और अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं कि हम ये नहीं है, हम कौन है? हम राधा रमण देव जी के दास हैं। इस भाव से, उस दासत्व के भाव से जब हम चिंतन करते हुए ठाकुर जी की लीलाओं में उनके सहायक हो जाते हैं और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाते हैं। ये पदार्थ क्या है? ये हमारी बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया से अनअटैच्ड हो जाते हैं और अपने स्वरूप में आकर हम कौन है? हम राधा रमणीय हैं। राधा रमणीय कौन है? राधा रमणीय की किस सेवा में उपस्थित हो? हम राधा रमणीय हैं। हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो कि निकुंज में गुण मंजरी स्वरूप श्री जी की सेवा में है, उनके अंतर्गत उनकी सखियों के भी दास के भी दास के भी दास हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्री जी निकुंज में गुण मंजरी जी से एक ग्लास पानी मांगती हैं, तो गुण मंजरी अपने अनुगत्य जो किंकरियां हैं उनको कहती हैं, वो किंकरियां आगे अपनी दासियों को कहती हैं, वो अपनी दासियों को कहती हैं, वो अपनी दासियों को कहती हैं। तो उन दासियों की भी दासियों की भी दासियों की दासियों की दासियों में से एक दासी आप भी हो। तो जब आपकी जो ऊपर की जो सहायक है वो आपको आज्ञा करेंगी, तो दौड़ के जाके आप जाके श्री जी के ताई ग्लास में जल लाओगी और फिर उन तक वो जल उस क्रम से ही पहुंचेगो। तो बताओ, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर ठाकुर जी की सेवा में आ जाओगे और इस बाहरी दुनिया से अनअटैच हो जाओगे, उस काल में तुम योगी कहलाते हो। उस काल में तुम भजनानंदी कहलाते हो, तुम भक्त कहलाते हो। भगवान कहते हैं ऐसा मेरी दृष्टि में कहा जाता है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम इतना कर लोगे तो मैं तुम्हें भक्त मानूंगा, तुम पूरे दिन मंदिर से निकलोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें भक्त मानूंगा, तुम केवल और केवल मेरा ही काम करो और पूरी दुनिया को भूल जाओ तो ही मैं तुम्हें भक्त मानूंगा। भगवान ने कहा ना, तुम्हें मैंने जो जो कहा है, जो जो दिया है, जो जो करना चाहिए उसको करते हुए जब तुम समत्व में होते हुए इससे ऐसे काल में मेरा चिंतन करोगे जिस काल में तुम्हें अन्य किसी भी चीज का और चिंतन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हारे जीवन में क्या घटेगा? योग घटेगा, भजन घटेगा। अगला श्लोक देखिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
योग का सेवन करने से, देखो, भजन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, मतलब कि जिस अवस्था में पहुंचकर आपका जो चंचल चित्त है, आपका जो अस्थिर चित्त है, आपका जो हर समय किसी ना किसी चीज का ध्यान करने वाला चित्त है, वो आराम की स्थिति में आ जाता है, जो शांत हो जाता है। जब आपको और बाहर की कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपकी उस स्थिरता को विचलित नहीं करती, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, तथा जिस अवस्था में स्वयं, सॉरी मैंने एक श्लोक स्किप कर दिया, हम पहले उसी को लेते हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः आत्मनः। जैसे स्पंदन रहित, बड़े ध्यान से देखिए, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही जाती है। अब बताओ, अगर आपने कभी किसी दीप को जलते देखा है, उस दीप के जलते हुए अगर वहां पर कोई भी हवा नहीं हो, तो क्या होता है? जो दीप की जो लौ है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, देखा है आपने मंदिर में, वो हिलती नहीं है। पर यही आपके कहीं दूर भी अगर पंखा चल रहा होता है, तो आपकी जो दीप की लौ है वो हमेशा अस्थिर रहती है, ऐसे ऐसे भड़कती रहती है कि नहीं? आप सब लोग आरती करते होगे संध्या में, तो स्थिर, वो जो दीप की जो लौ है वो अस्थिर रहती है। तो भगवान कहते हैं वैसे ही जो जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन का अभ्यास करते हैं, योग करने की कोशिश करते हैं, वह उनके करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसे ही उपमा होती है। मतलब कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके जीवन में बहुत सारी हवाएं चल रही हैं, तो आपका जो चित्त है वो सदा विचलित रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। पर वैसे ही अगर आपके जीवन में आपके द्वारा आसपास का पूरा जो वातावरण है वो कंट्रोल किया जा चुका हो, निद्रा पे कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, बुद्धि पे कंट्रोल, आसपास के व्यवहारों में, संबंधों में कंट्रोल, कि अब ये मेरा भजन का समय है, भगवान कहते हैं वैसी चित्त वाला व्यक्ति। और ये कैसे होता है? एक दिन में नहीं आता, घबराना नहीं। लग रहा है भजन कम हो रहा है, इस बात की अनुभूति हो रही है, शांत हो जाओ। अरे मैं राधा रमणी हूँ, मेरा भजन कम हो रहा है, राधा रमन लाल ऐसी कृपा करो मेरा भजन कम ना हो, आपसे बहुत प्रेम करूं राधा रमन लाल, मेरे पे कृपा करो। शांत मारे, आपने राधा रमन जी से प्रार्थना करी, उसी समय राधा रमन जी आके आपके सामने खड़े हो गए, लाला चिंता मत कर, मैं हूं, तू घबरा मत, कोई डेंजर ना है तेरे भजन को, कोई डेंजर ना है तेरे जीवन को, तू मेरे आश्रित हो गया है तो मैं हर समय तेरे संग रहूंगा। इस भाव के साथ आप बिल्कुल शांत मन से बैठकर भगवान का भजन करो। भगवान कह रहे हैं कि शांत चित्त वाला व्यक्ति ही मेरा भजन करने में सफल होता है। हम क्या करते हैं, हमारे भजन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आता है, उसी समय घबरा जाते हैं, भजन कम हो गया, भजन नहीं हो रहा, राधा रमन जी नाराज हो गए। हमको तो बड़ी कान पकड़ के कहना पड़ेगा, हम, हमारे फोन का नंबर थोड़ा फैल गया है वो तो हम जानते हैं, पर हम अगर किसी भी कारण से अगर कोई मैसेज का रिप्लाई कर नहीं कर पाते, तो हमके हमारे दिल को बड़ी पीड़ा, हमको प्रेशर हो जाता है इस बात का। लोग कहते हैं मैया आप हमसे नाराज हो गए हो। अरे भैया ऐसा हो ही ना सके, एक मैया अपने लालन से, अपनी लालियों से कभी नाराज है सके क्या? हमको बड़ा आता है, हमको बड़ी पीड़ा होती है, आपको साची कहे, हम आप लोगों से इतना प्रेम करें, इतना सतत राधा रमन जी से आप सबकी मंगल कामनाएं मांगे, और कहीं हमारी ही किसी व्यस्तता के कारण, अविवेक के कारण अगर आप सबको ऐसा आभास आए कि माँ हमसे बात नहीं करी, मतलब कि राधा रमन जी रूठ गए हैं, भजन नहीं हो रहा, तो इन सब चीजों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करना। राधा रमन जी आपसे अनंत प्रेम करें, सदगुरुदेव महाराज जी ने आपको तिलक कंठी पहना दी, मतलब कि अपना ही एक स्वरूप आपको दे दियो भैया। और हम तो आपके हम तो ये माने कि राधा रमन जी की प्राप्ति ही मुझे, अधम को, दीन को, आप सबन की सेवा के माध्यम से ही होनी है। तो क्या मैं ये, आप कहो, अफोर्ड भी कर सकती हूँ कि आप सबसे मैं कभी रुष्ट रह जाऊं? बताओ, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसो बात है गई। तो आप सब ये कभी मत सोचो, अपने जीवन में जितने भी आपके भजन को वीक करने के जो साधन
सोचने के, करने के, खाने के, बोलने के, उन सब पे कार्य करके प्रयास पूर्वक उनको नियंत्रण में लाया जाए। अरे राधा रमन लाल मेरे हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, क्या कभी मुझसे रुष्ट रह सके? अगर तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव भी आ गया, मैंने सिखाया हो ना माखन मिश्री बनानो, सिखायो कि ना सिखायो? अब कोई रूठ जावे तो उसकी प्रिय चीज उसको देवे कि ना देवे? तो रूठ गए तो बना दो, खवा दो, बनाओ उनके लिए, कुछ प्रयास करो, प्रयास तो करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जितनी भी, जैसे कि जब हवा चलती है तो जो लौ है वो विचलित होती है, पर जैसी हवा बंद हो जाती है, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है, तो जो वो लॉ है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वैसे ही आपका मन जब तक विचलित रहेगा आसपास की डिस्ट्रैक्शंस के कारण, तब तक आपका भजन होना, आपकी भजन में शांति होना, एकाग्रता होना बड़ा कठिन है। पर जब आप प्रयास पूर्वक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके अपनी जीवन की यथा योग्य आपके भजन की जो सहायक चीजें हैं उनको कर कर जब आप भजन में बैठोगे, तो भगवान कहते हैं तब आपका जो चित्त है वो परिपूर्ण भजन में लगेगा और आपको सिद्धि की भी प्राप्ति होगी, आपको भगवान की कृपा की भी प्राप्ति होगी। आइए आज की क्लास का लास्ट श्लोक जो है भगवत गीता का, उसको हम लेंगे। देखिए, डजंट मैटर आप संडे क्लास में, मंडे क्लास में, ट्यूसडे क्लास में, हर क्लास आपको कोई ना कोई ऐसी एक चीज दे देगी जो आपके जीवन में आपके भजन को और सहज और बहुत आनंदित करने वाला होगा। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का योग योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम है, मतलब कि वो भजन की स्थिति जहां पर आपका जो चित्त है, आपका जो मन है वो शांत हो चुका है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप राधा रमन जी के लिए भजन कर रहे हो, एक एक माला पे राधा रमन जी की उस कृपा का, उस नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, मतलब आपके मन को एक एक नाम जब आनंद प्रदान करने लगे, इस प्रकार की आनंदित चित्त वाला, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाए, मतलब कि उस स्थिति में जब आप पहुंच जाओ जिसमें आप अपने स्वरूप का अनुभव करो। आप भजन में बैठे हो, अब नहीं हूं मैं शंकर, अब नहीं हूं मैं कोई इस सामान्य जगत का कोई, किसी को मैनेजर, किसी की पुत्र, किसी का भाई, किसी का बंधु, किसी का बैरी, कुछ नहीं हूं मैं केवल राधा रमन लाल का दास हूँ। राधा रमन लाल, आप आज कौन सी लीला में प्रवेश कर रहे हो? चिंतन बिठाओ, गुरुदेव की कथा श्रवण करने के बाद भजन में बैठो, तो मिलेगा आपको लीला में प्रवेश। फिर लीला में पहुंचो भजन करते करते, अरे एक एक मन के पर सहायक हो, क्या चाहिए ठाकुर जी को, क्या कह रही है गुणमंजर जी, कैसा परिवेश है, कैसा आनंद है। जब आप ऐसे करोगे ना, तब आपके चित्त में आपको अपने ही स्वरूप का एक विलग दर्शन होगा, जिसका दर्शन करके आपके हृदय को परम शांति का अनुभव होगा। अरे राधा रमन लाल, मुझे कोई डर नहीं, आप जिस हाल में रखो, जैसा रखो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रखो, पर राधा रमन लाल मेरे मन से सदैव इस बात का भजन, चिंतन, आवाहन, दर्शन होता रहे कि राधा रमन, राधा। अरे ये सब तो ऊपर को नाटक है, अंत तो गत्वा, तो हमको कहाँ जाना है, अपने भीतर उस निकुंज में ही प्रवेश करना है। तो जब आपके एटर्नल होम का आप रियलाइजेशन करते हो ना विद इन, तब आपको परम शांति का अनुभव होता है, तब आपका मन विचलित नहीं होता कि ओहो ये मेरे लिए क्या बोलता है, ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। आपको पता है ये तो क्षण भंगुर आपके जीवन के अनुभव है, जिनके कारण भगवान ने आपके जीवन में उन्हें दिया ही इसलिए है कि आपको परिपक्व कर दे कि बाहरी परिवेश से ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति के भजन में किस प्रकार से आपको प्रवेश करना है। तो भगवान कहते एक संतुष्ट मन, एक स्थिर मन, एक शांत मन ही मेरा ध्यान करने के योग्य है। शांत मन कैसे होगा? जब दुनिया वालों से कोई भी ना तो सुख की अभिलाषा होगी, ना दुख का आभास होगा, ना कोई उनसे एक्सपेक्टेशन होगी, ना ही उनसे कोई संबंध। जब आप भजन में बैठो ना, तो अपरस में बैठो। अपरस का अर्थ है कि मेरा स्वरूप क्या है, ठाकुर जी के दासों के भी दास। मेरी सेवा क्या है, श्री राधा रमन देव जी के चरणार विंद की सेवा। मेरा
जीवन का लक्ष्य क्या है, श्री राधा रमन देव जी की प्राप्ति, और मेरे जीवन के हर कर्म का उद्देश्य क्या है, श्री राधा रमन लाल जी की दंतावली दर्शन, उनकी प्रसन्नता। बस फिर काय की चिंता। जब जीवन में इस प्रकार का तुम स्मरण करते हुए आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें इस दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचे नहीं सोचे, क्या करे नहीं करे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम्हारे आंतरिक मन में ठाकुर जी के उस प्रचित्त, उस प्रसन्न चित्त का तुम्हें आभास हो रहा है। वो कैसे होगा? जब तुम अपने जीवन को समत्व में जियोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सबका सम्मान करोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे, अच्छे से। बताओ, भगवान से ज्यादा बड़ा कोई व्यवहार में निपुण है? किसके संग भगवान ने व्यवहार नहीं निभाया भैया? चाहे मौसी हो, चाहे काकी हो, चाहे चाची हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे द्वारिकावासी हो, चाहे कहीं के भी वासी हो, भगवान ने हर एक के संग अपना संबंध निभाया है भैया। भगवान ने हर एक के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान जैसा ही होना होगा। अपने कर्म को भी अच्छे से करना पड़ेगा, अपने आचरण को भी अच्छे से करना पड़ेगा, अपने संस्कार को भी, व्यवहार को भी, हर प्रकार से। जब हम यथा योग्य अति सर्वत्र वर्जयते, टू ओनली एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड। क्या करते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए? हाँ, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे भैया, बैरियर्स तोड़ के ऐसे ऐसी हदों तक चले जाते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है न जाने मैं इसकी दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और फिर क्या होता है, जब आपने स्वयं ने अपने आचरण के कारण दूसरे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुंचा दी, और फिर जब अगली बारी खुद ही उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए, तो किसका माथा फूटेगा? तुम मारोगे उसको? तुम्हारा फूटेगा ना। और फूटना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही गलती है। भैया, अपने जीवन के संबंधों में भी समत्व को लाइए। आगे बढ़ चढ़ के न जाने तेरे लिए चंदे चांद तोड़ लाऊं कि तारे तोड़ लाऊं, डोंट डू दिस। जितनी आवश्यकता है, जितना करना चाहिए, उतना करके ही जीवन का निर्वाह करोगे, तो ही उलझनों से बचोगे। मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, घर वाले तो सब करो ना बेटा। और जब सब करने को कहते हो, खुद ही माथा पीट दे, माँ हमें टाइम नहीं देते, ये भी हम करते हैं, वो भी हम करते हैं, ये भी हमसे कराते हैं, वो भी हमसे कराते हैं, भजन को समय नहीं मिलता। तो अपने जीवन में समत्व में रहोगे तो ही प्रसन्न रहोगे। भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय में यही समझा रहे हैं। आइए जल्दी से हम श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों का भी अध्ययन करें। मैं जिसका नाम लूंगी केवल वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। आज की मॉरल स्टोरी जो सूत्र है वो इतना सुंदर है, उसके लिए भी आप सब बड़े उत्साहित रहिएगा। लावण्य जी से मैं प्रार्थना करूंगी, लावण्य कृष्णा जी से, कि वो विष्णु सहस्त्र नाम के जो ध्यान के श्लोक है जल्दी से उनको गान करें, पांचों श्लोकों को। शुक्लांबरधरम विष्णुम, अनम्यूट करो। मैया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो मैंने अध्ययन किया है मैं वो बोल सकती हूँ। लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, उससे पहले किए? धर्म। उससे पहले हाँ, नहीं, उससे पहले नहीं किए? 2 क्लासेस में अटेंड नहीं की मैया। अच्छा बच्चे, तो हम ऐसा करेंगे कि आप शुरू से शुरू करेंगे, है ना? इस हफ्ते में आप ध्यान के श्लोक याद करेंगे। शुक्लांबर, यू मैसेज मी आफ्टर द क्लास, आई विल सेंड यू द श्लोकास। ओके? हाँ। जिस मैसेज, हाँ। जिस नंबर से आपको मैसेज आया क्लास का। ओके? हाँ मैया। जानवी, अभी मैं। आपको मैं लोकाध्यक्ष पे पकड़ूंगी। हाँ। जानवी, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वलोकशान्ति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे धये वासिष्ठाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय प्रीते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। अक्षत गुप्ता गुप्ता जी, ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो ओम विश्वम
विशेष विष्णु विशेषकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता मुक्ताना परमागति अव्यय पुरुषः साक्षी सत्र ज्ञानेश्वर एवं च। सुंदर प्रयास बच्चे, पर इसको हम याद करेंगे। ओके अक्षय, याद करोगे तो उच्चारण और स्पष्ट हो जाएगा। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। माधव, योगो योग विदाम नेता। जल्दी जल्दी गाएंगे भैया, माधव जल्दी जल्दी। ललित, योगो योग विदानेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः सर्व सर्व शिवस्थान स्थानु भर्व सर्व शर्व शिवस्थानोर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। पल्लवी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को स्वयं भूशंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो अप्रमेयो ऋषिकेशो पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव। अप्रमेयो ऋषिकेशः, नॉट ऋषिकेशो। अप्रमेय ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा विश्वकर्मा मनुस्रष्टा सविष्ठः सविरो ध्रुव। प्रणव अग्रवाल जी। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो। मैया राधे लाला। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्शन प्रभूत श्रीकृपं धाम पवित्रं मङ्गलं परम् प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। बहुत सुंदर। सुरुचि कुमारी जी। ईश्वरः राधे राधे मैया। ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमान् अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिराजसवान् सुरेश शरणं सर्वं विश्वरेता प्रजाभवान्। अह संवत्सरो व्यालः अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शन। अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। वत्सल, अज सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाधिरच्युत वृषाकपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्व सुमना सत्य सतात्मा समिता सम अमोघ पुण्य सतात्मानि समात्मा समात्मा समिता समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। सुंदर प्रयास बेटा। नेक्स्ट श्लोक आरुषि। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चीसवः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्योनिः शुचिर श्रीवतामृत शाश्वत स्थाणुर्विरारोहो महातपः। सर्वगः सर्वविदा भानुर्वृषीष्वकस्तेनो जनार्दनः वेदो वेदविधि गो वेद विद्वी। सुंदर प्रयास। सर्वगः विश्वक्योनो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः। नेक्स्ट श्लोक वृंदा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुरात्मा चतुर्यु
चतुरात्मा चतुर्व्यूहान चतुर्दंश चतुर्भुज। राजेश चतुरात्मा चतुर्दंष्टा चतुर्व्यूह। बोलो। चतुर्यूहश्च चतुरात्मा चतुरात्मा चतुर्व्यूहंश चतुर्व्यूहंश चतुर्दंश्च चतुर्द्रंशश्च चतुर्भुज। चतुर्भुज। ठीक है। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहंश चतुर्दंश्च चतुर्भुज। दीक्षा। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भाजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु वेरी गुड बेटा। उपेन्द्रो वा हम्म। उपेन्द्रो वामनः प्रांशु मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्र तीन्द्र संग्रह संग्रह सर्गो सर्गो धृतात्मा नियमो धृतात्मा यमः। नियमो यमः नेक्स्ट नेक्स्ट वेद्यो वेद्यो। वेद्य वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः माधवो वीरः मधु वीरः वीरः माधवो मधु माधवो मधु। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबल। श्री राधा रमण लाल की जय। प्लीज इसको रोज रोज पढ़िए। जो लास्ट के 3-4 श्लोक है उनमें तो आप थोड़ा सा उलझे तो ठीक है, पर शुरू के श्लोकों में नहीं उलझना चाहिए। प्लीज मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू आर रीडिंग इट एवरी डे। जल्दी से आइए, अगले 2 श्लोक जो हम आज की क्लास के उन्हें जल्दी से पढ़ेंगे। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान अमेयात्मा महादृधिक। महाबुद्धि मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। महावीर्य जो सबसे ज्यादा वीर है मतलब पराक्रमी है। महाशक्ति जो जिनमें सबसे ज्यादा शक्ति है। महाद्युति मतलब जिनकी सबसे सुंदर कांति है। अनिर्देश्य वपु मतलब अनिर्देश्य विग्रह वाले, मतलब कि जिनका जो स्वरूप है वो अनिर्देश्य है, मतलब कि बिना वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई निश्चित जिसका भाव नहीं है। श्रीमान मतलब कि ऐश्वर्यवान। अमेयात्मा जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता, मतलब इनफाइनाइट। महाद्रिधिक मतलब अमृत मंथन और गोवर्षण के समय मंदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले, मतलब कि जब भगवान ने समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने जो भूमंडल था उसे अपने पीठ पर धारण किया था, और गोवर्धन लीला में अपनी उंगली पर धारण करने वाले भगवान। उसके बाद देखिए अगला श्लोक, जो अगला श्लोक को भी हम जल्दी से लेंगे। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पतिः। महेश्वास मतलब महान धनुष वाले, जो सर्वश्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले हैं। महीभर्ता पृथ्वी को धारण करने वाले। श्रीनिवासः मतलब अपने वक्षस्थल में श्री मतलब लक्ष्मी जी को निवास देने वाले। सताम गति अर्थात सत्पुरुषों के परम आश्रय, मतलब जिनके चरणों में सभी संत सतगुरुदेव सतपुरुष सब जो आश्रय लेते हैं। अनिरुद्ध मतलब सच्ची भक्ति के बिना किसी के भी द्वारा न रुकने वाले, मतलब जिसके जीवन में जो कह दे निष्काम भक्ति होगी, सच्चा प्रेम होगा, उसी के जीवन में रुकने वाले। सुरानंद मतलब देवताओं को आनंदित करने वाले। गोविंद मतलब वेद वाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले, मतलब जिनके गुणों को वेदों में लिखा गया है, ऐसे अपने आप को प्राप्त करा देने वाले। गोविंद गोविदाम पति मतलब वेदवाणी मतलब वेदों को जानने वालों के स्वामी, मतलब वेदों का आश्रय लेके जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिस भगवान को जानना चाहते हैं, उनके स्वामी स्वयं भगवान श्री विष्णु। इन 2 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। इनको हम मुखस्थ कंठस्थ और फिर हृदयस्थ करेंगे। आप सबसे मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, शस्त्र नाम साथ साथ याद करते जाओ। नहीं करोगे तो बड़ा कठिन है जाओगे, और करते जाओगे तो मैं साची कह रही हूँ इससे ज्यादा सरल। अभी अगर आप शुरू के करोगे ना, जो प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं, मैं कहती हूँ लास्ट के 3-4 में आपको शायद ग्रंथ देखना पड़ रहा हो, पर शुरू के जो आप शुरू से लेके अभी तक कर रहे हैं उनके लिए ध्यान की और प्रथम के 10-12 श्लोक तो अब बिल्कुल
कहते ना पानी की तरह निकलने चाहिए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्याहोम विश्वम विष्णु षट्कारो भूत भव्य भवतरो भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा। ये आपका अभ्यास है। ये आपको ये कैसे होता है? जब आपको हृदयस्थ हो जाता है। भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष शक्ति क्षेत्र गोचरे योगो 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 योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह व पुरुष। मतलब आपके अंदर से अक्षर आ रहे होते हैं, पर आपकी जो वाणी है वो इतने सारे शब्द कॉमन हो जाता है ना। तो आपको इस प्रकार इसका अभ्यास करना है। सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है। तो अगर आप इसका अभ्यास नहीं करोगे ना, और जिसको इसका रस लग गया ना, मैं सच्ची कहती हूँ, हरेर नाम केवल इसका ही पाठ प्रतिदिन कर लोगे ना, तो तुम्हें तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। तो आइए जल्दी से अविलंबित रूप से आज के सूत्र में भी हम प्रवेश करें। बड़ा सुंदर सूत्र है आज का। एक बार एक छोटे से बालक ने अपने पिताजी के साथ जिद करी। क्या जिद करी? कि पिताजी मैं आपके संग पहाड़ पर जाऊंगा। तो उसके पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, पहाड़ तो बड़ा कठिन होता है, मैं वॉक करने जाता हूँ, तुम गिर जाओ। हो सकता है संडे क्लास के कुछ बालकों ने ये हमसे सुनी हो, क्योंकि ये तो हमारे खून को पी चुके हैं पूरा, तो संडे वाले हैं। पर हो सकता है कईयों ने नहीं भी सुनी हो। पर तो वो बालक पिताजी से हट करने लगा, नहीं आप मुझे लेके जाओ, आप मुझे लेके जाओ। तो पिताजी ने उससे हट करने लगा, तो पिताजी ने कहा चल ठीक है, जूता पहन लेके चलूंगा। तो जैसे ही उसके पिताजी उसको पहाड़ पर लेकर गए, तो पहाड़ जो था उसपे बहुत से पत्थर थे, बड़ा रपटन था। तो पिताजी आगे चल रहे थे, तो वो बालक पीछे पीछे पिताजी को फॉलो कर रहा था। फॉलो करते 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 गलती से उसका पैर फिसल गया और उसके घोटू में चोट आ गई। घोटू से खून निकलने लग गया और जोर से उसने बोला आह। जैसे ही गिर के जोर से आह करा, तो जो पहाड़ था, क्योंकि माउंटेनियस रीजन था, पल्लवी इस बात को बड़ी अच्छे से समझती होगी, जब पहाड़ के अंदर तुम राधे बोलो तो क्या होता है? पहाड़ से वो आवाज एको करती है और सब जगह से आवाज क्या आती है? राधे। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने बोला आ, और उसको भी आवाज क्या आई? आ। तो उसको लगा, वो बच्चा छोटा था, उसको लगा कि मेरी आहा को किसी ने देखा और मेरी आहा का मजाक उड़ाते हुए, जैसे हम कहते हैं ना तो मैंने कहा ऐसे टीज करने के लिए किसी ने उल्टा मेरे को आहा बोला। उस बच्चे को बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई तू मुझे चिढ़ा रहा है, वो भी छुप के, तू है कौन? उस बच्चे को बड़ा गुस्सा आ गया। उसके पिताजी दूर खड़े उसे देख रहे थे। अब उसने क्या किया, उसने जोर से बोला तू कौन है? भैया वो तो पहाड़ था। पहाड़ ने भी जोर से बोला तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? अब तो उसको बड़ा ही गुस्सा आ गया कि भाई तेरी तो ऐसी की तैसी, मतलब मेरे को लगी दर्द हो रही है मेरे पे, एक तो मुझे रोना आ रहा है दर्द के मारे, और तू मेरे को उल्टा और जोर जोर से मेरे पे चिल्ला रहा है। तो वो आवाज को उस व्यक्ति को बोलता मैं तुझे मार दूंगा। अब पहाड़ का तो क्या स्वरूप है? पहाड़ कहता है मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अब उस बच्चे को और गुस्सा आने लगा। उसके पिताजी उसके पास आ गए, वो समझ गए कि खेल क्या चल रहा है। तो पिताजी जैसे ही पास आए, तो पिताजी का बेटा क्या कर रहा है? तो वो रोने लगा, पिताजी देखो कौन गधा मूर्ख है, कहाँ से छुप के मेरी एक्टिंग कर रहा है और मुझे लग गई है, फिर भी मेरे से मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 मिनट रुको। तो उसके पिताजी उस आवाज की तरफ मुड़े और कहने लगे मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। अब माउंटेन का स्वरूप क्या था? वो तो जो उसको दिया वही वापस देगा। अब उस माउंटेन से क्या आवाज आई? मैं तुझे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तुझे बड़ा प्रेम करता हूँ। वही आवाज एको की आई। अब उस बच्चे के तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई उसको कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो बोल रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, और मेरे पिताजी को बोल रहा है कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो पिताजी को बड़ी टेढ़ी नजर देखेगा, पिताजी ये तो बड़ी गलत बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा जो आवाज तुम्हें सुन रही है ना, वो आवाज किसी और की नहीं है जो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल आवाज तुम्हारी ही है, जो तुम्हारे द्वारा बोली गई है, पर इन पहाड़ों से लगकर वापस तुम तक ही आ रही है।
तो उसके पिताजी ने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि तुम अपने जीवन में जो भी बाहर देते हो अंत तो गतवा वो ही पलटकर तुम्हें प्राप्त होता है। अगर तुम हेट्रेड दोगे, अगर तुम अपशब्द दोगे, अगर तुम क्रोध दोगे, तो इस दुनिया से उस क्रोध को देने के बाद अगर प्रेम की आशा कर रहे हो तो वो तो उस अविवेक छोटे बच्चे के जैसा ही हो गया, जिसको पता नहीं है कि आपके जीवन में आपको जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके द्वारा ही रचा हुआ है। आप जो सब्जी खा रहे हैं और उसको खाने के बाद निंदा कर रहे हैं ना, आप शायद भूल गए हैं 2 घंटा पहले वो सब्जी आप ही ने बनाई थी। हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ये कर दिया, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा व्यवहार हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे थोड़े समय पहले हमने भी उसके साथ कुछ वैसा ही किया है। ये दुनिया अगर आज आपको दुख दे रही है ना, इसका कारण ये है कि आपने भी इस दुनिया को कभी ना कभी किसी ना किसी समय दुख दिया है, जो वही दुख आप पे पलट कर वापस आ रहा है। तो जब अपने ही बनाई हुई सब्जी को खा रहे हो ना, तो टेढ़ा मुंह मत बनाओ, बल्कि प्रयास करो कि अगली बार जब सब्जी बनाए तो और अच्छे से सब्जी बनाए। जो कमियां हमने छोड़ी हैं उन कमियों को और अच्छे से हम पूरा करें। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको स्वीकार करते वक्त इस बात को समझ जाओ कि आज मैं हार गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया। आज मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को दुख दिया। आज अपने जीवन में जो भी आप तक आ रहा है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करके अपने एक्शंस को, अगर आज से मैं ये ठान लूं कि मैं सबको प्रेम ही दूंगी, मैं सबका सम्मान ही करूंगी, मैं सबसे अच्छे से ही बोलूंगी, तो मैं आपको साची कह रही हूँ, ये दुनिया भी आपके प्रति समय के साथ अच्छी हो जाएगी। और अगर नहीं भी हुई, भाड़ में जाने दो भैया, दुनिया से लखो किसने क्या लेनो, क्या तुम लोगों ने इस दुनिया से? ये दुनिया में आयो फिर चले जानो है। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से ये दुनिया रीझे ना रीझे, पर मेरे राधा रमन लाल जरूर रीझ जाएंगे। दुनिया तुम्हें प्रेम करे नहीं करे, पर तुम्हारे प्रेम के कारण मेरे राधा रमन लाल तुमसे जरूर प्रेम कर जाएंगे। तो भैया बताओ, इसके अलावा तुम्हें जीवन में और कुछ चाहिए? तो उस बाप ने पिताजी की इस बात को ध्यान करके कि हाँ पिताजी सच्ची ये वो है जो मैं बोल रहा हूँ और मुझ तक वापस आ रहा है, तो उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, खाई के थोड़ा और पास गया पहाड़ के, और बोलने लगा मैं भी तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। और उसी समय उस पहाड़ियों ने गुंजायमान होकर उस बालक को बोला, मैं भी तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं भी तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो हम भी अपने जीवन में जो स्वयं को अनुभव कराना चाहते हैं ना, पहले उसको देना सीखो। जब तक तुमने त्याग नहीं किया ना चीजों का, तब तक तुम्हें प्राप्ति भी नहीं होगी। लोटा तो उतना ही भरा है, तुम पूरा चावल से ही भर लोगे तो सब्जी का खोपड़ी में डालोगे? भाई थोड़ा सा चावल किसी और को दोगे तभी तो अपने पात्र को थोड़ी सी सब्जी वो तुम्हारे पात्र में डालेगा कि नहीं डालेगा? पहले ही अपना पात्र तुमने इतना भर लिया होगा, फिर मांगोगे तो देना चाहिए, चाय भी तो क्या देगा तुमको। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, अगर जीवन में प्रेम चाहते हो, जीवन में सम्मान चाहते हो, जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, तो पहले उसको देना सीखो। जिस दिन से तुमने उसको देना शुरू कर दिया ना, तो राधा रमन जी उसी दिन से तुम्हें उस चीज को प्राप्त कराने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर देंगे। तो आपके जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है ना, उसके लिए औरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए और अपने ही कर्मों को आज से सुधार लीजिए, जिससे कि आगे जाकर जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप प्रेम व्यवहार चाह रहे हैं, वो भी वही आपको भी प्राप्त हो। वो यू विल डेफिनेटली रीप ओनली दैट थिंग विच यू आर गोइंग टू सो। जिस बीज को लगाओगे वही फल खाने को मिलेगा। तो अपने बीज पर काम करो, फल तो अपने आप आ जाएगा बेटा। इस नोट के साथ हम आज की क्लास को विश्राम करेंगे। प्लीज अपने जीवन में हर वस्तु को राधा रमन जी की कृपा और प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना, ये 3 चीजों को अपने जीवन के आधार के रूप में रखकर कि अपने आप को किसी से बड़ा नहीं मानना। ठाकुर जी हम आपके सभी दासों के भी दास हैं। अपने जीवन में सबके प्रति आप बड़े सहज हो जाइए, कोई ज्यादा झंझट नहीं पालना, ये वो ऐसा वैसा, बिल्कुल सहज होकर और सबका सम्मान करना। जिस दिन से आपने अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया, उस दिन से आप देखेंगे कि
आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। ठाकुर जी का अनुभव कृपा आपके जीवन में सहज हो जाएगी। On this note, we'll end today's class. I will take 5 questions in this class today. उसके बाद आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। आप सबके लिए आज हमने एक बड़ी सुंदर वीडियो ऑफ ऑन ओलाई, हमको बड़ी बात है कि माई राधा रमन जी को संध्या आरती के बाद ही कपड़ाहीन क्यों कर देते हैं, ठाकुर जी को कपड़े क्यों नहीं पहनाते। तो उसके बाद उसका जो भाव है बड़ा सुंदर है राधा रमन जी मंदिर का, जिसकी एक इंस्टाग्राम वीडियो मैंने बनाकर भी डाला, आप उसको जरूर देखिएगा कि राधा रमन जी के औलाई दर्शन का भाव क्या है। और कल हम आपको सिखाने वाले हैं एक DIY वीडियो, जिसमें राधा रमन जी की औलाई में धारण की हुई कोपीन ठाकुर जी की कैसे बनाई जाती है, जिसको आप सब भी अपने घरों में बनाकर राधा रमन जी की औलाई सेवा अवश्य करें। ठाकुर जी की इत्र सेवा करे बिना, उनको सहज वस्त्र पहनाए बिना अगर आपने सुला दिया ना, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप किसी पार्टी के लिए तैयार हुए, इतने इतने कुंडल पहने, इतना इतना मांग में बेंदा लगाया, इतनी भारी चमकीलीदार साड़ी पहनी है, और मैं कहूँ दीक्षा आज तू इसी साड़ी में ही सोएगी लाडी। तो कोई मेकअप नहीं उतारेगी, ना कुंडल उतारेगी, ना अपनी चोटी को जूड़ा खोलेगी, ना ही अपनी साड़ी को तो चेंज करके नाइट सूट पहनेगी, ऐसे ही सोएगी। जितनी आपको असहजता होगी ना इतने भारी भरकम चीजों को धारण करके सोने में, हमारे लालजू को भी उतनी असहजता होती है। तो बड़ा इमोशनली इन्वेस्ट करके हम ठाकुर जी की औलाई सेवा अवश्य करें, उनको सहज करके बिल्कुल आनंद से। ठाकुर जी सर्दी है तो बिल्कुल ऊनी सी एक वस्त्र का कपड़ा, मोटी सी रजाई उड़ा के, अगर ठाकुर जी गर्मी है तो केवल कोपीन में हमारे राधा रमन लाल शयन करते हैं। इतनी उनको गर्मी लगे भैया, वो तो बिल्कुल दर्शन भी कोपीन में ही दे दे, पर ये ठाकुर जी तक ही आप सीमित रहने दीजिएगा उनकी सेवा में ही। तो आप सभी अवश्य औलाई की जो सेवा है वो आज से ही अपने ठाकुर जी की प्रारंभ करें। और राधा अष्टमी का जो भाव है वो 7 डेज प्रायर से हम लोग आपको वीडियोस देंगे, उसके लिए भी आप उत्साहित रहिए। कल कोपीन का वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे। ऑन दिस नोट वी विल एंड द प्रैक्टिकल क्लास एंड 5 क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू एंटरटेन फॉर टुडे। वृंदा जी का पहला क्वेश्चन है, कल हमको ये लाली हमें मंदिर में भी मिली, हमको बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया मेरा क्वेश्चन है कि जो जैसे महाभारत में जो गांधारी थी, दुर्योधन की माता जो गांधारी थी, तो वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की, बहुत बड़ी भक्त थी। पर फिर भी उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको मतलब अच्छी शिक्षा क्यों नहीं प्रदान करी। बेटा ये उनके पूर्व जन्मों का एक प्रभाव था। गांधारी की जो विद्या थी वो इतनी प्रबल थी कि वो अपने 100 वर्षों को देख सकती थी, पहले के 100 जन्मों को। तो गांधारी ने एक बार भगवान से जिज्ञासा करी कि भगवान मैं अपने पिछले 100 जन्म देख सकती हूँ, और मैं जितना उनमें देख सकती हूँ उसमें मैं ये जानती हूँ कि मैंने पिछले 100 जन्मों में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करा जिस कारण से मुझे इस प्रकार की अपने पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी, इस प्रकार के मेरे पुत्र हुए और इस प्रकार की लीला पूरी घटी। तो भगवान ने क्या कहा, कार्तिक जी बड़े प्रसन्न होने वाले, हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं, दादा नहीं आए, दादा नहीं है, दादा आवा लो। राधे राधे करो। श्री राधा रमन लाल की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निमाई दादा की जय। तो गांधारी जब भगवान से इस प्रकार की जिज्ञासा करी गांधारी ने, तब भगवान ने बताया गांधारी तू 100 जन्म तो देख सकती है, पर 101 जन्म में तू एक राज्य की बहुत बड़ी रानी थी और तेरे सर में बड़ा दर्द रहता था। तो एक बार जब तेरा सर का दर्द किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हुआ, तो एक तांत्रिक वैद्य वहां आया, उन्होंने कहा कि तुम 100 केचू होते ना कीड़े, उनको मसल कर उनका जो रस है उसको अपने सर पर लगा, उससे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गांधारी ने ऐसा ही किया, 100 केचुओं को मारा, उसको पीस कर उनका लेप लगाया और जिससे कि उसको लाभ हुआ। पर वो 100 केचुओं ने कितनी बार इन 100 जन्मों के अंदर बार बार जन्म लिया, कभी उसके शत्रु बनके, कभी कुछ बनकर, जिससे कि वो गांधारी से बदला ले सके। पर गांधारी का जो भजन था वो इतना प्रबल था बेटा, ठाकुर जी की उसकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि वो कोई और बनकर गांधारी का बाल भी नहीं बांका कर पाए। तो फिर अपने उस कर्म को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या जो योजना निकाली कि
उन्होंने गांधारी के गर्भ से ही जन्म लेकर उसके सामने जब उनकी मृत्यु हुई, वो जो कष्ट था उसको धारण करके गांधारी अपने पूर्व के उस कर्म से निवृत्त हो गई। तो इसीलिए बेटा ये सब ठाकुर जी की लीला थी। जो गांधारी इतनी तपस्विनी होकर भी जब वो अपने बच्चों की मृत्यु उसने देखी अपने सामने, एक मैया के लिए उसके बालक की मृत्यु हो जाना, वो भी 100 के 100 बालकों की, वो भी इतनी क्रूर मृत्यु हो जाना, उससे बड़ा दुख कोई नहीं था। जब गांधारी के हृदय में वो दुख हुआ तब वो अपने पूर्व के कर्म से निवृत्त हो गई बेटा। यही पूर्ण लीला है और ये पूर्ण कारण है जो गांधारी के द्वारा इन 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ओके, आरुषि चोपड़ा जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बच्चे। माय क्वेश्चन इज कि हमें हाउ डू वी मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि व्हेन वी आर इन हॉस्टल और व्हेन वी आर इन डिफरेंट कंट्री, राइट, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल एंड ऑल है, अब सब तो भक्ति में नहीं, एंड उनको तो नॉर्मल तुम ऐसे जय जय भी करोगे ना भगवान जी को, देर लाइक ओ माय गॉड तपस्वी बन गए तुम, साधु हो गए, ये हो गए वो गए। तो वी हैव टू बी देयर विद देम बिकॉज दे आर अल्टीमेटली आर ओनली सर्कल हियर, राइट। तो हाउ डू वी मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि हमें उनको नो बोलना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर अस एंड वी हैव टू रिफ्रेन आवरसेल्व्स उन चीजों से। तो दैट इज वेरी गुड वो बेटा। ना भी बोलना है लेकिन उनके साथ भी रहना है, तो हाउ डू आई मेंटेन अ बैलेंस? Firstly, you have to use your wisdom in saying no to the wrong thing, that which you're already doing, and yes to the right thing. I'm not saying don't say yes in anything. Definitely say yes. आप अब्रॉड में हो, आप एक फ्रेंड सर्कल में हो, आप घूमने जाओ, आप इधर उधर जाओ, आप उनको राधे राधे भी बोलो। कुछ धर्म है जो आप अपने लौकिक व्यवहार के कारण निभा रहे हो, कुछ धर्म है जो अपने आप आध्यात्मिक व्यवहार के लिए भी निभाओगे। आप जब राधे राधे बोल रहे हो, कहीं ना कहीं उनके हृदय रूपी पात्र की भी उससे शुद्धि हो रही है। कोई कहीं ना कहीं कान से राधे राधे तो भीतर जा रहा है ना, कहीं ना कहीं उनके राधा रमन जी जो उनके हृदय में बैठे हुए बेचारे इतने अतृप्त हैं, बेचारे इतने परेशान है कि कहीं एक एक राधे राधे को कर्ण भी नहीं मिल रहे। तुम्हारे मुख से कहा हुआ राधे राधे उनके कर्णों से होता हुआ जब उनके हृदय में बैठे राधा रमन जी को स्पर्श करेगा ना, तो उनके मुंह पर भी मुस्कुराहट आएगी लाली। तो आपने गलत चीजों में बिल्कुल साथ नहीं देना, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाने, हम तो भजनानंदी है जी, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं, पर हम सब कुछ अपनी मर्यादा में करते हैं। हम घूमने भी जाते हैं, हम ऐसे लंचेस में भी जाते हैं, लंचेस में जाते हैं पर हम अपनी मर्यादा से। हम वहाँ पे मांस मछली केकड़ा चूहा नहीं खाते, हम वहाँ पे सैलेड खाते हैं, हम जाते हैं, हम इतने कोई क्लोज नहीं है, पर हमारी अपनी एक मर्यादा है, राइट। बैलेंस करने के लिए बेटा आपने उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना, आपने उनके थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करना। अब जस्ट बी इजी, बी नॉर्मल। आप पढ़ाई करने जाते हो, अपने उनसे एकेडमिक्स की बात करो, अपने भजनानंदी वाली साइड को भी ज्यादा उनको पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। भजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग जो आप अपने सुबह अपने कॉलेज जाने से पहले अपने रूम में करते हो, राइट। उसके बाद आपका जो भी स्वरूप है, आप माला भी अगर बाहर ले जा रहे हो, कोई पूछे, सहज पूछे तो उनको बता दो दैट दिस इज व्हाट। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है इस बात के ऊपर, वो ऊपरी मजाक तो उड़ा रहा है बेटा, पर कहीं ना कहीं अंतर से उनको भी क्यूरियोसिटी हो रही है, एंड यू आर वेयरिंग द क्राउन ऑफ बीइंग अ राधा रमणीय। मेरा कल एक पॉडकास्ट हुआ, मेरे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो somebody said कि आप जब बाहर जाते हो तो आप किस चीज के साथ जाते हो। मैंने कहा मैं क्राउन पहन के जाती हूँ। कौन सा क्राउन? मैंने कहा मैं क्राउन पहनती हूँ, आई एम अ राधा रमणीय। उस क्राउन के साथ जब मैं जाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो आप भी जब जाओ, do everything, there is no limitation, but the thing is that everything has to be done in a way that should not deviate you from your eternal goal. घूमो, किसने मना किया घूमने को? मैं तुमसे जितना भैया, मैं कहती हूँ राधा रमन जी ने मुझे रोलर हॉकी प्लेयर इसीलिए बनाया था क्योंकि पहले तो वो सच में रोल्स के ऊपर ही दौड़ाते थे, और अब बिना रोल्स के भी ठाकुर जी उससे भी ज्यादा स्पीड से दौड़ा रहे हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें बाहर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अभी एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, बिल्कुल सहजता से अपने फ्रेंड्स को ये पोर्ट्रे करने की जरूरत ही नहीं है दैट आई एम द ऑड वन आउट। व्हाई आर यू द ऑड वन? यू आर द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। सो यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी हैप्पी, और उसको आपने ऑकवर्ड नहीं करना अपने मन में कि ओहो ये वो। आप अपनी सहजता से, अपने आनंद से, अपने ऑरा के साथ लोगों के साथ रहो, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप उनको राधे राधे बोल रहे हो, आपने उनके जैसा नहीं बनना, पर आपने अपने आप को भी नहीं खोना, आपने बिल्कुल नेचुरली
जैसे आप मुझसे आके मिलोगे मैया राधे राधे, तो अपने फ्रेंड्स को बोलो राधे राधे, कभी ना कभी तो टेढ़े मुंह से बोलेंगे राधे राधे, फिर 1-2 महीने बाद अपने हाँ राधे राधे जी, राधे राधे महात्मा जी, राधे राधे। अब मेरी चंडीगढ़ में जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी, ओ गुरु माता जी आगे, गुरु माता जी। मैंने कहा तुम क्या करते हो भाई, क्यों, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट। अब जब मैं जाती हूँ तो वो जेन्युइनली मुझे राधे राधे बोलते हैं। मैंने कहा आ गए ना तुम लोग लाइन पे, सो इट्स गुड। तुम ये प्रचार ही कर रहे हो, तो इसमें कोई आपको ट्रबल होने की बात नहीं है बेटा। ओके, बी एज यू आर। Okay. भक्ति भक्ति तुम्हें तो और इजी कर देती है लाइफ में। I told them about you. I told everyone about you. I was like, you know, my Maya, I follow her every time, and she studied at Oxford, and then she came, and then she's doing all that. And they're like, oh, really? Wow. And then, So you have to inspire them, बच्चे। Bhakti doesn't make you a closed person. Bhakti opens up you towards everything in life, but with a different perspective, but with a different goal. You are there, and if you are able to manage that, at least out of 10, 2 says Radhe Radhe every day to do, तुम्हारा काम बन गया। राधा रमन जी खुश है तुमसे, तुम्हारा हो गया प्रचार। वहां रहते हुए भी तुमने राधा रमणीय होने का धर्म निभा दिया भैया, ठीक है। सो बी इजी, बी हैप्पी, डोंट बी ऑकवर्ड इन एनी सिचुएशन। लाली हर्षित जी, ये हमारा लाला बहुत परेशान है। हाँ बच्चा बता। हरे कृष्ण माता जी। राधे राधे बच्चे। हाँ माता जी, what happens in my case is that rather than giving association, मुझे उनका संग मिलने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट करता है। नहीं बेटा, तो डायरेक्टली इसमें काम कौन करेगा? आप किस पे करोगे? अपने आप पर। अगर आप औरों से प्रभावित हो रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि अभी आपको अपने भजन की, आप दीक्षित हो बेटा? नहीं माता जी। अभी आप दीक्षित नहीं हो, तो आपको इतना, पहली बात तो भजन को लेके ना इतना सेंसिटिव नहीं होना। इट इज ओके। आप जो मटेरियल वर्ल्ड में होते हो ना, बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं, पर आपने अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको उल्टा बोल रहा है, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। वो उल्टा बोल रहा है, वो उसका डिपार्टमेंट है, उसको झेलना पड़ेगा। आज मैंने स्टोरी क्या बताई कि आप अगर कुछ किसी को बोल रहे हो, वो जो बोला जा रहा है वो उस व्यक्ति को कहीं प्रभावित नहीं करेगा उसके जीवन में, बल्कि उल्टा लौट के आप पर ही आएगा। तो आपको अवेयर होना है, आपको ज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है। Why are you getting affected? Why you are attached to other people? When you are serving the Supreme, when you are in the lotus feet of श्रीमती राधा रानी, जब आपको पता है कि मुझे अपनी ड्यूटीज करनी है, बेस्ट देना है इटर्नली, तो मुझे दोबारा इस संसार में भटकना ही नहीं है भैया, आना ही नहीं है, उसके लिए मुझे काम करना है। आप क्यों अपने आप में इमोशंस को फुटबॉल बना के दूसरों को देते हो भैया? अब फुटबॉल बना के दोगे तो लोग तो फुटबॉल खेलेंगे। Why you want that? आप अपने ऊपर काम करो। मैं अपना दोस्त हूं, अपने जीवन में अपने लिए काम कर रहा हूं, अपने परम उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं, और मेरा परम उद्देश्य क्या है। इसके बाद अगर आप ऐसी स्थिति में हो ना बेटा, ऐसे में आपसे अलावा आपको कोई भी उससे नहीं बचा सकता। आपको अपनी विवेक को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने भजन को और बढ़ाना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, आपको वैष्णव एसोसिएशन करना पड़ेगा। आप क्लास में आओ, रेगुलरली आओ, आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, डोंट टेक देम वेरी सीरियसली। आज सुख है तो कल दुख होगा ही होगा, और अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा ही आएगा। जैसे कि रात होती है, क्या तुम कुछ भी अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो, दिन को आने से रोक सकते हो बेटा? तो फिर ये तो एक इटर्नल प्रोसेस है, इनमें आपको उलझना नहीं है। बार बार से तुम सब काम करते जाओ, अंदर अंदर राधा रमन बोलते जाओ। ऐसी दुनिया में जीना चाहिए और जीना है। डोंट गेट टू मच इमोशनली अटैच। लोग क्या बोल रहे हैं उनको बोल रहे, तुम कुछ गलत नहीं बोलो, तुम कुछ गलत नहीं खाओ, तुम कुछ गलत नहीं बोलो, ठीक है। इन बातों का ध्यान करो, इससे तुम्हें सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। श्लोकों का आश्रय लो, ये तुम्हें स्ट्रेंथन करते हैं अंदर से। जब हम विश्वम विष्णु वषट्कारो बोलते हैं ना, तो तुम्हारी जो ऑरा है, तुम्हारा जो ये चीज है, जो छोटी छोटी बातों पर जो हमारे अश्रु गिरने लग जाते हैं, ये कैसे कर दिया, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, तुम्हारे जीवन में इन सब का समाधान हो जाता है। ओके, एंड यू बी रेगुलर विद द क्लास, इवेंचुअली यू विल ग्रो बेटा। You don't have to become weak. You are the chosen one, जिसे राधा रमन जी ने अपने भक्त के रूप में इस धरती पर भेजा है। तुम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो।
अब सिलेक्शन होने के बाद अगर फेल हो जाओगे तो भैया कैसी मूर्खता है। सिलेक्शन हो गया, ट्रायल देने ही नहीं जा रहे, किसी और गेम, मतलब बताओ सिलेक्शन हो गया फुटबॉल में, खेलने जा रहे हैं क्रिकेट, तो कैसे खेलेगो बेटा। ठीक है श्वेता बच्चे। जी माता जी, थैंक यू। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। मैया मुझे चैंटिंग से रिलेटेड ये पूछना था कि सवेरे उठ के मैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कर लेती हूँ, लेकिन इस जब मैंने 17 जुलाई से स्टार्ट की थी, मैं इनिशियली एक दो माला करती थी, तो मैं गुरुदेव भगवान की कथा सुनते सुनते करती हूँ, ये ठीक है क्या? मतलब कथा उनकी श्रवण जो करते भागवत करते कथा माला होती है। करते हो, गुरु मंत्र हाँ। बिल्कुल हाँ कर सकते नहीं हो नहीं, बेटा, गुरु बहुत मंत्र सुंदर। नहीं, जो आपने हरे कृष्णा महामंत्र महामंत्र, आपने बोला था ना, वही। हाँ, बिल्कुल पुरुष चरण बिल्कुल के जो लिए। हाँ हाँ सॉरी, आप जो माला कर रहे हो चातुर्मास की, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वही कर वही। सकते हैं बेटा, वो तो बहुत अच्छी बात है। कथा श्रवण क्या है ना, कथा श्रवण करते करते माला में मंत्र बोलना, ये एक बड़ा कोऑर्डिनेशन का काम है कि आप कथा हाँ भी और सुन रहे हो, माला भी चल रही है, पर अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है और माला में करते हो मंत्र उच्चारण सही हो रहा है तो आप सुन सकते हो। हाँ। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि माला करते करते अगर कथा में मंत्र गलत हो रहा है, तो आप पहले हम्म। अपनी माला करो, फिर कथा श्रवण करो बेटा। इसमें कोई अपराध नहीं है, अच्छा। बहुत अच्छी बात है, हम तो करते हैं बहुत बार। आपने हमको कथा में हाँ, देखा होगा, हम बैठे डिस्ट्रैक्ट हुए हो माला जाती करते हूँ अगर मैं बिना कथा के करती हूँ, तो इसलिए कथा सुन रही हूँ हैं। साथ बहुत में। सुंदर, करो करो बहुत, इसमें कोई अपराध नहीं बेटा, वेरी गुड। ठीक है, राधे ओके, राधे मैया। राधे राधे लाली। ठीक है। अक्षत गुप्ता जी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद ललित, देन वील एंड द क्लास। राधे राधे मैया। यस बेटा, राधे राधे। मैया, when we start a mala, with which month should I start? Like when I start my mala, next mala at वंदे आप दीक्षित हो लाला। no ma, no मैया। एक मिनट, जो माला का क्रम रहता है ना, ये हमारी परंपरा में नहीं है बेटा, कि हम जब एक माला पूरी हो जाती है, छोटे मनके से हम बड़े मनके तक आ गए हैं, उसके बाद उसी माला के उसी मंत्र में हम वापस लौटते हैं। हम उसमें कोई बीच में अन्य मंत्र बोल के उसको उसके उस क्रम को खंडित नहीं करते बेटा। कई लोग होते हैं जो एक माला हो जाती है तो कोई ना कोई उसमें संपुट लगा देते हैं ना, कि एक मंत्र बोल दिया, जैसे हरे कृष्णा कर रहे हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत ऐसे लगा दिया, फिर वापस माला शुरू करी। हमारी परंपरा में ऐसा हमारे श्री हमारी आज्ञा नहीं करते। आपने एक माला करी, फिर आप उल्टा लौट के उसी उसी मंत्र के ही नियम में रहते हो। प्रारंभ करने से पहले आप वंदे हम अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हो, आप अपनी भूत शुद्धि करते हो, और उसके बाद आप फिर माला जी में प्रवेश करते हो। प्रवेश करने से पूर्व आप मंगलाचरण के जो प्रणाम मंत्र है उन्हें गा सकते हो, पर एक बार जब माला प्रारंभ होगी बेटा, तो बीच में अन्य मंत्र को आप नहीं करते। ओके। यस हाँ मैया। कौन था? कृष्णा, कृष्णा सही, सही किया जी। वेदांत चल लो, हम तो कह रहे हैं तुमको, तुम रो ही जा रहे हो बेटा, नहीं जा रहा नहीं जा रहा। अब गोदी उठा के कैसे ले जाऊं तुझे घर से, बता। कृष्णा, हाँ जी लाली। राधे श्याम माँ, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। खूब मेरा पहला प्रसन्न। क्लास है आज। डिड यू लाइक द क्लास बेटा? It was amazing. Did you learn anything, any one thing that affected you in the class, you may share with us? Absolutely, ma'am. Everything was like so influential. However, जो last में आपने सूत्र share किया, that resonated really well. I was struggling with some doubts and that clarified my doubts. Very good लाली। Yes बच्चे, ask me. हाँ जी। माँ, मेरा एक्चुअली मैं रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करती हूँ, तो मेरा यूजुअली नाइट शिफ्ट रहता है क्योंकि क्लाइंट्स बाहर के रहते हैं। तो मेरी माला यूजुअली क्या होती है ना, काम के बीच में मुझे समय मिल जाता है तो मैं कुछ राउंड्स कर लेती हूँ, फिर जब समय मिलता है बाद में, इसमें तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि ना मेरा तो भजन ही बेकार है। बिकॉज मैं ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के कर लूँ। अदरवाइज मोस्टली नाइट शिफ्ट रहता है और दिन में मेरी नींद भी वैसे पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से बॉडी भी काफ़ी अफेक्ट हो चुकी है। तो मैं जैसे तैसे माला कर रही हूँ,
No, is कोई it बात is नहीं there any बेटा, राधा रमन जी आपके प्रयास से ही प्रसन्न है। और आपकी क्योंकि ऐसे ऑड आवर्स में शिफ्ट रहती है, तो आपकी जैसे अगर रात की शिफ्ट है तो रात्रि में आप उठ आके जब सो जाते हो, है ना, सोने के बाद जब आप उठते हो तो उस भाव से आप माला करो कि अब मेरा, क्योंकि दिनचर्या मेरी भारत के हिसाब से नहीं, अन्य किसी देश के हिसाब से ठाकुर जी, तो आप उसके हिसाब से इसे ब्रह्म मुहूर्त मानो और उसमें बैठ के तुम माला करो। पर कभी रात्रि के अंदर बेटा, ठाकुर जी तो भाव स्वीकार करते हैं। आपने कितने, अगर आप इतनी भसड़ के अंदर भी आप माला कर रही हो, तो मेरे लिए तो यू आर ऑलरेडी अ विनर। आई थिंक राधा रमन जी इज ऑलरेडी वेरी हैप्पी विद यू विद दिस एफर्ट। पर अगर आपके मन में ऐसा आता है कि आप और दिल से भजन करो, तो अपनी दिनचर्या में बेटा जो भी समय आपको सहज लगता है आपकी रूटीन के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर आप जो भजन है उसको उस हिसाब से आप मैनेज कर लो, उसमें कोई अपराध नहीं है। आप नाइट शिफ्ट करके आए, सुबह सुबह आप सो गए, आकर सो के जब उठे स्नान किया, इस भाव से कि रात्रि में व्यक्ति सोता है, सुबह उठता है, स्नान करता है, फिर भजन करता है, तो वैसे ही आपने रात्रि को अपना दिन बना लिया, फिर आप दिन के हिसाब से आके नहा सो गए, फिर उसके बाद आप उठे, तो आपके लिए तो वही ब्रह्म, जब जागो तब सवेरा, ये बुद्ध जी का बड़ा पॉपुलर सूत्र है। तो आप उठे और फिर आपने अपना भजन किया। इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू। लास्ट ललित एंड देन आई विल एंड द क्लास। जल्दी जल्दी करो। जानवी ने आज एक प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा क्या, बीमार लग रही है जानवी हमको। है जानवी? जानवी आज कोई भैया प्रश्न नहीं? मैंने चैट बॉक्स में डाला था, मैं ये शायद मिस हो गया। ओहो, ऐसे कैसे? मेरे को तो मैं तब से देख रही हूँ जानवी का हाथ ही नहीं आ रहा, हाथ ही नहीं आ रहा। देखो ठाकुर जी की कैसी कृपा है बेटा, कि हम कोई ऐसी चीज बार 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 करें कि अभी आपसे बात करते करते ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मेरी दृष्टि में जानवी है कि ये हमेशा जिज्ञासा बहुत होती है लाली की, तो ये सच जिज्ञासाओं के में कारण ही मेरी, तो हम भी क्यों ना कोई जीवन में ऐसी एक आदत को अपना ले जिसे बार बार करके 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 ठाकुर जी की भी दृष्टि में उसी कारण से बेटा फंस जाए। क्यों हो ना ही सके, हम ठाकुर जी से एक ऐसी चीज में हम ठाकुर जी को के साथ अपने संबंध को बनाने की, अगर हम वो नहीं करें तो ठाकुर जी को भी अटपटा है जाएगी, एक इसको का हो गया भैया। हाँ जानवी, तो पूछ ले बेटा कोई क्वेश्चन, हमको हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। भैया वो पीरियड्स में जैसे मैंने तिलक किट ली थी वैजयंती प्रोडक्शन से ही, तो उसमें कौन पता नहीं प्रिंस प्रभु थे, पता नहीं कौन थे जो कांटेक्ट कर रहे थे कि आपके पास सामान पहुंच गया है क्या, तो बता रहे थे कि गोपी तिलक में राधा कुंड का पानी है और रज भी है, तो उसे फिर हम पीरियड्स में लगा सकते हैं कि नहीं, यही मुझे बेटा पूछना था। पीरियड्स के अंदर, इस समय के अंदर आप तिलक अवश्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि तिलक कंठी तो ऐसा एक भी क्षण नहीं होना चाहिए जब आपके ऊपर ना हो। ठीक है, तो आप उसको धारण कर सकते हैं, पर जो तिलक लगाने की सीख होती है, आप एक तो उस समय आप जो राधा कुंड वगैरह का जल है उसमें आप सामान्य जल का प्रयोग कर सकते हो उन 5 दिनों में, और जो तिलक है आप राधा कुंड का जल भी प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई हाँ, पर अपराध नहीं है। मैया वो कह रहे थे कि वो जो गोली है ना गोपी चंदन की उसमें ही है। उसके अंदर ही मिले थे, हाँ हाँ, बस तो क्या रज इसमें आपत्ति है? ब्रज रज भी है और राधा कुंड तो की। आप जो, क्योंकि एक बार देखो आपने उसको स्पर्श कर लिया सीख को, तो हाँ सीख को हाँ, स्पर्श करके आप जैसे उसको फिर आप डिस्कार्ड कर दो, फिर अच्छा अगले दिन ठीक है, नई सीख से, जिससे कि अगर वो आपके, ठीक है, क्योंकि उस समय आप अपवित्री में है, उस समय आप पीरियड्स में है, ठीक है, तिलक करने के बाद उस सीख को आप दोबारा प्रयोग में नहीं लो। तो एक बार आपने ले लिया, उस सीख से तिलक लगा लिया, उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया इन 5 डेज के लिए, पर तिलक अवश्य करना ठीक है है बेटा। मैया, ठीक है मैया। ठीक है, और और मैया आज का सामान्य जल सूत्र का आप उसमें बहुत प्रयोग अच्छा कर था, सकते। आज का सूत्र बहुत अच्छा था, मतलब मुझे सुनने की बहुत जरूरत थी ये सूत्र, क्योंकि काफी कुछ हो रहा था, तो अच्छा और हुआ मुझे कि लग ही रहा है मैंने हमारी आज की लाली थोड़ी क्लास कुछ अटेंड कर ली। कुछ हमारी लाली थोड़ी कुछ उदास सी लग रही, तो हमने बढ़ के पूछ लिया, हमने कहा सब ठीक है। माधव, थैंक अच्छा यू पूछो भैया। लास्ट क्वेश्चन बच्चे। ललित, माधव। राधेश्याम मैया। राधे राधे बेटा, जल्दी जल्दी कर लो, अब हो 9:30 हो गया, हमारी लालियां बाहर उधम काट रही हैं। मैया मैं ये पूछ रहा था कि कई लोग कहते हैं कि सेवा में तो आपके यहाँ पे सिल्क पहनते, तो सिल्क तो प्योर नहीं होता, किसने बोला सिल्क प्योर नहीं होता? कीड़ों को मार के बनाया जाता है। अरे बेटा, फालतू की बातों में उलझना ना है।
जो रेशमी धागा होता है उसे अति प्योर माना जाता है। राधा रमणीय सेवा में सिल्क को ही धारण करके उसे पट्टा, उसको मुट्टा कहा जाता है, और उस मुट्टे को ही धारण करके सेवा में जाया जाता है। तो आप सिल्क को धारण करके आप पूर्ण पवित्र ही रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कीड़ों को मारा नहीं जाता है, सिल्क कीड़ा बनाते हैं, उन कीड़ों को मारा नहीं जाता है। वो आप कह लो कोई चीज उनके द्वारा बनाई जाती है। अब बताओ, फल भी तो पेड़ के द्वारा बनाई जाता है, खाओगे ना है? कीड़ा का मार के कौन सिल्क बनता है? कीड़े को मार के बनता है कोई सिल्क भाई? मैया राधे राधे। आजकल जो सिल्क आ रहा है ना मैया, वो कीड़ों को उबाल के मार के ही आ रहा है। भैया ये तो ऐसा सिल्क ना प्रयोग लो भैया, प्योर सिल्क जो होता है उसी का प्रयोग करो, उनका प्रयोग करो, इन चीजों का प्रयोग करो। जो प्योर सिल्क होता है वो, ये आर्टिफिशियल मिलावटी सिल्क वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉट द सिंथेटिक वन। प्योर सिल्क जो होता है उसे धारण करना पवित्र माना जाता है। ओके ओके मिया। अहिंसा सिल्क मत यूज करो भाई। अहिंसा सिल्क क्या होता है? हम तो नई नई चीजें तुम लोगों से ही सीखते हैं भाई। अहिंसा सिल्क कौन सा? प्लीज यूज प्योर सिल्क जिसमें किसी भी कीड़े को मारा नहीं जाता है। सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उस थ्रेड को तैयार करते हैं, उनसे सिल्क बनाया जाता है, उसमें किसी को भी मारा नहीं जाता। प्लीज मरे हुए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कीड़े को मार के कैसे जी, हम नहीं जानते। पर सिल्क जो होता है आइडली, जो प्योर सिल्क होता है सिल्क वर्म्स द्वारा बनाया जाता है, उनको मार के वो नहीं बनाया जाता। जैसे कि एक जो गोट होती है वो वूल बनाती है, राइट? तो वूल बनाती है, तो वूल को जब गोट से ले लिया जाता है तो वो गोट को हानि नहीं देता, वो गोट के द्वारा उतारा नहीं जाएगा तो गोट को तंग करता है। तो वो जैसी चीज, जैसे गोट के ऊपर से जो वूल होता है वो हटा दिया जाता है, पर उससे गोट को कोई हानि नहीं होती। जैसे तुलसी जी के ऊपर मंजरी होती है तो मंजरी जी को हटाया जाता है जिससे कि तुलसी जी का जो पौधा है वो और स्वस्थ हो जाए, वैसे ही सिल्क वर्म द्वारा भी सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है जिससे कपड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज को आप समझकर प्योर चीज को ही ले, जहां पर प्योरिटी से उसको, उस थ्रेड को आपको प्राप्ति हो। ओके राधे राधे मैया, जैसे सिल्क जब बनते हैं, जब उनसे निकाले जाते हैं सिल्क, तो उसमें सिल्क जो 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 जीव होता है वो मर जाता है, क्योंकि उसको पानी में उबाल के वो करते हैं कुछ, मैंने ऐसा प्रोसेस देखा है नहीं इसीलिए। बेटा, आपने कहा, हमने जो पढ़ा है और जो हम जानते हैं, जो हमने देखा है, उसमें किसी को भी मारा तो नहीं जाता है बेटा। वरना राधा रमन जी की सेवा में, अप्रस की सेवा में तो उसका प्रवेश, हमारी जितनी पवित्रता हमारे मंदिर में उतनी कहीं ना है। अगर आप इसके बाद हमको एक शेयर भी कर देंगे आपसे वीडियो ऑफ मेकिंग द सिल्क थ्रेड। जो ओरिजिनल सिल्क बनाया जाता है उसमें किसी भी जो इंसेक्ट होता है उसकी हानि नहीं होती। हाँ जी ओके मैया, आप उसमें है, लेकिन है ना अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण हाँ, मार्केट तो बेटा में, ये जो उसके कारण अहिंसा ये से बनाया प्रैक्टिसेस जाएगा उस फॉलोड सिल्क हो का रही हैं। प्रयोग हम नहीं करें, और ना ही उसका प्रमोशन करें। जो ओरिजिनली सिल्क वॉर्म्स जो सिल्क थ्रेड बनाते हैं, जैसे गोट से वूल मिलता है, जैसे कि तुलसी जी के पौधे को मंजी हटाने के बाद उसमें तुलसी जी आती हैं, उसी प्योरिटी वाले ही थ्रेड का हम प्रयोग करें। इसका हमको विचार करना पड़ेगा, ये कहाँ मिलता है, इस चीज को विचार करके हम ले। भाई प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा हो गई है तो कीड़े उबाल रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और कीड़े उबाल के भी थ्रेड कैसे बना देंगे, ये तो हमारी समझ के थोड़ी बाहर का विषय है। पर अगर बना रहे हैं तो ये तो गलत है। पर हम मैया मैं प्योरिटी, आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजूंगी। हाँ तो आप हमको भेजना, और ऐसे अहिंसा सिल्क को ना प्रयोग करें, ऐसा मेरा निवेदन है। केवल जो प्योर सिल्क वॉर्म्स द्वारा बनाया जाता है उसी सिल्क का हम प्रयोग करें। ओके मैया हाँ मैया, जैसे कि माला में जो उनसे मतलब उसमें गौड़िया पठावली में दे रखे, तो अन्यास वगैरह वो करने होते हैं रोज? बेटा वो गुरु आज्ञा के बाद, अगर आपको आता नहीं है अभी, और अन्यास नहीं न्यास बोलते हैं उनको, और आप उनका पहले गुरुदेव से आज्ञा लेके वो कैसे करने होते हैं उन्हें समझकर फिर करें। ओके मैया। ओके रितु जी, लास्ट क्वेश्चन, देन आई एम एंडिंग द क्लास। रितु भैया राधे राधे। राधे राधे बेटा। भैया वो जो आप माला का बता रहे थे कि मतलब बीच में कुछ क्या बेटा? हाँ कि माला करते वक्त बीच में ऐसे बेटा वो एक जो माला करते हैं ना, बीच में सुमेरु आता है जिसके ऊपर एक ऐसे धागा सा भी लगा होता है। तो माला करते वक्त हम जब छोटे मनके से बड़े मनके की तरफ आते हैं ना, तो उस सुमेरु को पार नहीं करते, क्योंकि उस सुमेरु को ठाकुर जी का आसन माना जाता है। तो जैसे आप बड़े मनके तक आए, उसके बाद जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, पुनश्च उसी मंत्र का उच्चारण करके वहीं से आप उल्टा हो गए माला में।
कई लोग क्या करते हैं, बड़े मन के पर आकर वो एक अन्यत्र संपुट मंत्र ले लेते हैं। वो अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, हमारी प्रणाली में उसको नहीं आज्ञा की जाती बेटा। विशेषतः इस कौन में हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि उसको आप बीच में ले लीजिए, पर हमारे गुरुदेव इसकी आज्ञा नहीं देते। मतलब जब हम उसको मोड़ेंगे माला को, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला बोलना है ना मंत्र। अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब जैसे माला को टर्न करते हैं तो हम वही बोलेंगे ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य जो मंत्र का, जो जिस मंत्र का आप माला कर रहे हो वही मंत्र बोलना। ओके ओके, थैंक यू कोई माता। और नहीं बोलना, ठीक है। इसी भाव के संग ओके अभिलाषा जी, ओके अभिलाषा जी, इतनी प्यारी शक्ल बनाओगे तो मैं क्लास ही नहीं एंड कर पाऊंगी। बोलो अभिलाषा जी। भैया जी मेरे गुरु कौन है? वाह वाह, ये कौन है भैया? जतिन चौधरी जी, प्लीज अपनी अपनी सुंदर चेहरा तो हमको दिखा दो जरा। राधे आप श्याम। हमारे गुरुदेव को नहीं जानते? राधे श्याम माँ। राधे राधे बेटा। माँ माँ, पहले तो मुझे आपको बताना था, आपने कहा था कि भैया का ऑपरेशन हो जाए तो मुझे बताना। तो मैंने आपको फोन किया कई बार, बट आप बिजी थी तो बात नहीं हो पाई। माँ रक्षाबंधन वाले दिन ऑपरेशन हो गया था। लाली ऐसा करो, ये पर्सनल बात हम करेंगे फोन पे अभी। अच्छा माँ, तुरंत अच्छा माँ, वीडियो अच्छा कॉल। क्वेश्चन पूछ लें आपसे। माँ मैंने मैसेज किया, माला करते हैं और पूजा करते समय नींद आती। माँ सिर्फ पूजा करते समय नींद आती है, उसके बाद बिल्कुल क्योंकि नहीं। आप नींद, पहले तो अपने अपनी बॉडी के टेस्ट कराओ। आप सुन लो, सोल्यूशन सुन लो। सुनाओ निमाई क्या? जय जय करो। जय जय। आप प्लीज माँ पहले तो अपनी बॉडी के टेस्ट जगन्नाथपुरी में, कराओ, अपना जगन्नाथपुरी में विटामिन माँ डी इनको चेक हमें कराओ, बहुत खिलाना है। विटामिन B12 बाहर कर दो तुम्हें फिर से। जी माँ। आप बेटा पहले तो अपनी आपके शरीर स्वस्थ है इसकी पूरी आप नियंत्रण रखो। आपका B12, विटामिन डी, ये दोनों तीनों चीजें भी भजन के अंदर आपकी निद्रा को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इनको टेस्ट कराओ, नहीं है तो इसकी दवाई खाओ, निद्रा पूरी करो, आपका भजन ठीक हो जाएगा। माँ ये माला नींद, करते समय जैसे नींद आ जाती है तो माँ अपराध तो क्योंकि नहीं? उसमें परम शांति का अनुभव, उस समय परम शांति का अनुभव होता है ना बेटा। पर यह कि अगर आपकी निद्रा पूरी होगी, अगर आप तुम देवीय भाषा में सुन लो भैया सोल्यूशन, हम तो बता नहीं पाएंगे तुमको। ये और जल्दी से हमें खूब सारा प्यार दीजिए। हाँ ये देखिए बोल रहा है माँ। आओ तो सही ना, तभी तो दूंगा। निमाई तुम्हारे 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 इस चक्कर में मेरा पूरा इंस्टाग्राम तुम्हारी वीडियो से भरने वाला है दादा। नहीं आती। आरती करते समय, ठाकुर जी की सेवा करते समय जैसे ही सुंदरकांड की पुस्तक खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, बस उसी टाइम नींद आने लगती है। और फिर माला के टाइम तो आप इस पे अपना थोड़ा अपने टेस्ट कराओ, इसमें दवाई वगाई अपनी खाओ, विटामिन B12 और आपका माँ डी, जैसे हम विटामिन माला डी कम होगा। करते हैं। जी माँ। और माँ जैसे हम माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके बाद माला करते करते जगन्नाथ जी पहुंच गए, और उसके बाद बिहारी जी पहुंच गए, फिर वल्लभ देव जी, सबसे मिलाते हैं उतने पूरे माला में, 14 माला में। और माँ लेकिन वो माला करते करते जाता है मंत्र, पता नहीं हम कब पहुंच करते जाते करते हैं क्या हो जाता है? हरे कृष्ण पता नहीं कब पहुंच जाते हैं उसमें माँ। हाँ। तो उसमें कोई माला मंत्र करते करते महामंत्र में पहुंच जाती हो? नहीं, महामंत्र जैसे स्टार्ट करा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके बाद दर्शन करते करते पता नहीं, जब हमें अपने होश में हम आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो हरे कृष्ण कर रहे थे, पर अब हम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम पहले हो जाता है और हरे कृष्ण बाद में होता है। तो उसे ठीक कर लो। मैं अपराध तो नहीं है उससे, कई बार मन में आता है। जब तुम्हारी चेतना ही नहीं है उसमें बेटा, मैं बोलूंगी ठीक करो, तुम कहोगे माँ मैं तो बिहारी जी डोल रही थी, वो कैसे हो रहा था, तो थोड़ी मैं कुछ कह सकती हूँ। पर यह है कि हाँ, मंत्र को, अपने उच्चारण को बेटा स्पष्ट रखना चाहिए, और अपने चिंतन को भी एकाग्र करके। इतनी जगह डोलते डोलते भजन करोगी तो उल्टा फुल्टा होएगा ही मामला है। इसका अर्थ है मतलब अभी तक तुम्हारी एकाग्रता एक जगह नहीं है ना। जो एकाग्रता पहले लाओ, उसके बाद फिर भजन का जो स्वरूप है वो और आपका निश्चित हो जाएगा बेटा। जी माँ, ठीक है। राधे श्याम। इसी नोट के संग मैं क्लास को विश्राम करती हूँ, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, द संडे बैच, मंडे द मंडे बैच। और गलत बात है लक्ष्य राघव जी, लड़ाई मत करो, बताओ क्या बोलना। हे भगवान, हमको फोन पे फोन आ रहे, 10 लोग बाहर बैठे हैं हमसे मिलने के लिए। भैया जल्दी बताओ, लक्ष्य बोलो, कौन है भैया ये लक्ष्य यादव जी? लाला
लक्ष्य, ओ लक्ष्य, कौन है भैया, बोलो। चलो, इसके साथ हम क्लास को विश्राम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I'll see you all next week. श्री राधा रमन लाल की जय।